Second half of the match here, match number 24 of Khyber Premier Football League 2021, organized by Jammu and Kashmir Football Association in collaboration with Jammu and Kashmir Sports Council, presented you by AMRL Labs and Shamrock, where young minds grow, and powered by Arise Hyundai. In the com box, as I and Irshad have already mentioned, that it's a veteran and one of the greatest ever sports personality from the Shahri Khas, Shaukat Masoodi Sahab. We had a chat with him, and it will be continued for a while, but for some time, for the people, for the viewers, for their amusement, let's have a commentary for a while here. Meanwhile, one of the player from the AG's 11 is holding the ball. He has just placed the ball on the edges of the circle is there, and with jersey number 5 from the AG's office is Amir Dar. He's going to deliver a kick. Up he goes, he kicks it, ball is just popping up in the air. It's well into the penalty box. There is somebody. Oh, that's a bicycle kick. What a terrific blow. Wow. Spectacular, sensational. I don't have phrases to describe. This was a moment of the whole event, Irshad. Yes, wow. What a kick he just shown over there. He just went into the air, and the bicycle kick comes out and thrown it into the net. So that means that AGS 11 caught up the mark, and with the bang, and within the minute or so, here you can watch it in the replays. This was the passing from the center of the circle, on the edge of the circle, and look at that. Then it was a header. He just tried. The number 10, just, oh my goodness, what an image it has been. It should be the profile for the AGS 11 for some days. Or it was a very fantastic. So AGS 11 just dropped the first bullet here, and they are off the mark with the bank with 1-0 on the board. It's for the AGS 11. Absolutely, that was a spectacular show from Hanan. And what a remarkable goal that was, scintillating, and this is a sensational phase of the match. AG's office are taking a lead of 1-0 in the second half of the match here. There we go, number 5 from the opponent's team, that's Ali Jinnah Football Club. They need to pull out all the stops if they want to get an equalizer here on. It is just a cross pass, layup pass, just chips it out, and one of the players from there, Ali Jinnah's Football Club is taking it forward. Meanwhile, one more player gives a backheel pass, super passing there, short passing has been fantastic by the AG's office, and he takes it forward. He was brought down, and whistle has been blown. No, it is the assistant referee who is showing the signals that throw comes in favor of AG's office now, and this was the goal of the event, I must say once again. Number 3 comes in charge. He's going to deliver a throw-in that has been well received by 97. It is Aman Jodh. He takes it forward. That has been well obstructed. Once more ball has been taken by number 3 from the Ali Jinnah Football Club. Is one of the players. He sends it to the mid zone. From the mid zone, it was a midfielder. He could not receive the ball. Good backheel pass by number 7. Receives it. Wonderful passing, back-to-back passing by the AG's office. They are back on the fray now after getting a goal here, and look at their body language. They are now absolutely channelizing their energy into a right direction. There we go. It's one more pass from number 7. Number 7 gives the pass to the one more player around the touch lines. He was hugging the line. Meanwhile, one more comes from jersey number 7. He was well blocked there. Barrage of fielders around here. Some sort of dilation from the centre forward as well that we have seen here. Ball has been well blocked out, staying in the circle there. That has been given to the number 19. Number 19 takes it forward, sends to the left out. He was not there. Ball goes and passes the touch line. It's going to be a throw-in. And may we have a replay once more from the managing director, please? Yes, it was an absolutely fantastic goal. So here comes the replay. Look at that first. It has been. Look at that first. Number 5 in on the central. And he just kicks it in the air, and it was missed there by, look at that, he just tried to header there, and he misses, and he creates a gap for the number 10, and number 10 with his scintillating effort, and look at that, he was in there. This should have been the profile picture for the team of AGS 11 for some days. I come to know that this was a scissor kick. क्या कहना चाहेंगे आप इस गोल के बारे में? बहुत ही कमाल का गोल, मुझे लगता है कि at the end it was a scissor kick. बिल्कुल अच्छा गोल, बहुत ही अच्छा गोल किया इसने, लेकिन गोलकीपर, ये मेरे ख्याल से गोलकीपर की गलती है. अगर वो ये आगे निकलते तो इसमें फिस्ट कर सकते थे, तो गोलकीपर ने थोड़ा सा लेट किया, तो उस वजह से उन्होंने एक अच्छी तरह से कन्वर्ट किया. Absolutely, goalkeeper could have fisted it out, but it was the man who had a presence of mind there, absolutely converted that chance, and there was some sort of deflection from the header. Ball just pitching there, it was up almost in the air for a while, and he utilized it right footer and bangs it into the nets. बिल्कुल, हनान ने बहुत ही अच्छा गोल किया, बहुत ही एफर्ट करके गोल किया उन्होंने. तो बहुत अच्छा गोल किया उन्होंने. अच्छा, टेक्निक्स और स्किल्स की बात करेंगे यहाँ पर. फुटबॉल, इट नीड इज टेक्निक, इज टैक्टिक, इज ऑल दोज थिंग्स, एंड इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दोज
टैलेंट दैट इज़ नीडेड। एंड अगर यहाँ पर वो चीज़ें आपके पास नहीं है, टेक्निक नहीं है, आपके पास सलाहियतें नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास स्किल नहीं है, तो क्या 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 नज़र आ रहा है आपको दोनों टीमों की तरफ से? एजीज 11 अली जना फुटबॉल क्लब नई क्लब है, लेकिन अच्छा वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए थोड़ी सी जी। इसमें एजीज ऑफिस में है वसीम मखदूमी है, क्या नाम, शहनवाज है, हनान है, बड़े बड़े प्लेयर है इसमें। तो जो जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस, वसीम मखदूमी है नंबर 19 लगा के, तो इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत अच्छा हाई क्वालिटी फुटबॉल खेला है और स्किल इनके पास बहुत अच्छे स्किलफुल प्लेयर है, तो ये इनके पास एक एडवांटेज है। लेकिन अली जाना के पास तो यंगस्टर है, फॉरेनर्स भी है, तो वो भी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा जोर लगाएंगे, और तो अभी कुछ नहीं बता सकते मैच में। तो मेरे ख्याल से अभी मैच को बहुत टाइम शौकत मसूदी साहब, इरशाद एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो जिस शख्स को भी, जिस खिलाड़ी को भी किक आती है, किक को सही तरीके से और सही जगह पे डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको लग रहा है कि जहाँ से उनको किक आई है उन्हें सही जगह पे डाली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने एक अच्छा जो शूटर होता है उसको पता है ये स्विंग कैसे करवाना है, उनके फुट अच्छे होते हैं, उनके पैर साफ होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ये चीज़ें ये सब प्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप बड़े बड़े फुटबॉल में देखें तो वो रोनाल्डो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो फ्री किक स्पेसिस्ट होता है, इसी तरह हमारे पास भी टीमों में लड़के होते हैं जिनके पास पैर साफ होते हैं, जो स्विंग करना जानते हैं, कर्व जैसे स्विंग, हम तो स्विंग बोलते हैं, जो स्विंग करना जानते हैं, जैसे कॉर्नर पे होती है या फ्री किक पे होती है, फिर वो गोलकीपर को भी पता नहीं लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो उनके पास वो स्किल्स होते हैं। अच्छा, किसको दिया जाता है ये किक ज़्यादातर? चूँकि एक बहुत ही अनोखा फैसला होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है मैच का, चूँकि वहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड है, डिफेंडर है, मिडफील्डर है, किसको ज़्यादा चुना जाता है? ये सर जब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसमें ये सेट पीसेस होते हैं, जैसे कॉर्नर आती है, फ्री किक होती है, उस पर टीम सारे काम करते हैं। पहले उनको पता होता है किस सिचुएशन में कहाँ पे किक मारना है, किसको मारना है, और कितने यार्ड पे किसको मारना है, और लेफ्ट साइड अगर है तो किसको मारना है, अगर राइट साइड है तो ये तय होता है पूरा। टीम इसकी प्रिपरेशन करती है, फिर उनके पास वो सेट पीसेस होते हैं, तो वो उन सेट पीसेस पे काम करते हैं। अच्छा, जब कॉर्नर किक डालती है तो कॉर्नर किक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस खिलाड़ी को अंदर रखना चाहिए पेनल्टी बॉक्स में? वहाँ पर जंबलिंग होती है फिर खिलाड़ियों की, तो उस समय क्या आपकी राय एज ए फुटबॉलर? सर क्या होता है कि जब कॉर्नर होती है उसमें डिफेंस जो हेड वर्कर होते हैं, जिनका हेड स्ट्रांग होता है, उनको उधर लगाया जाता है, अंदर लगाया, ताकि वो ऊपर जाके लंबे खिलाड़ी और जिसका हेड वर्क सॉलिड होगा, जिसका जो हेड वर्कर स्ट्रांग, जिसका हेड वर्क स्ट्रांग होगा, उसको आगे लगा लेते हैं। उस टाइम आप सब टाइम देखोगे कि जो डिफेंडर होते हैं, स्टॉपर होता है, वो आगे आता है, वो हेड कर, क्योंकि एक स्टॉपर के पास हेड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इरशाद, यहाँ पर शौकत मसूदी साहब ने बहुत ही अच्छी बात छेड़ी है, जो आपको मैंने इससे पहले कही थी, कुछ दिन पहले जब मैचेस की शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेडर्स देखे हैं जो एज डिफेंडर खेलते हैं, लेकिन जब कॉर्नर की किक मिलती है वो वाकई में गोल माउथ के सामने जाते हैं उस वक्त, जो वहाँ पर 6 यार्ड या रेक्टेंगुलर पूरा एरिया जो वहाँ पर होता है। तो आपको लग रहा है कि पूरे इवेंट में हमने उतने बड़े हेडर्स नहीं देखे इस प्रतियोगिता में जो अभी तक चल रहा है, क्या आपको लग रहा है थोड़ी सी कमी है हमें हेडर्स की? बिल्कुल, हमने देखा है कि ऐसे कॉर्नर किक्स को जो है ज़्यादातर उनको जो है टर्न नहीं किया गया है गोल की तरफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पहले उनको ज़मीन पे वो बॉलें गई थी या वो वेवाड़ गई थी, उनके हेड से ऊपर से गई थी। बिल्कुल जैसा मासूद साहब अभी कह रहे हैं कि ऐसे हेडर्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको डिफेंस में जो है अगर कॉर्नर किक मिलती है तो वहाँ पे हेड जो स्ट्रॉन्ग हेड जिसका होगा तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत है। लेकिन ऐसे भी टीम्स है इसमें जिनके पास उतने बड़े लंबे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं अभी तक, जो हमने 24 मैच वहाँ इस वक्त चल रहा है 24वां मैच, तो उसमें तक ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो ज़्यादा इसमें कॉर्नर आए हैं वो ज़्यादा टर्न नहीं हुए हैं एज ए गोल। तो फिलहाल यहाँ पर फ्री किक यहाँ पर मिलेगा, तो देखना चाहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर उठाते हुए कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर अली जाना एफसी के खिलाड़ी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब, उसको वहाँ से पुल आउट करते हुए इस बॉल को और साइड लाइन से बाहर। तो इस तरह फिर से यहाँ पर अली जाना को थ्रो इन मिला है। यहाँ पर बातचीत अभी हमारी जारी है शौकत मासूदी साहब से। मासूदी साहब, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आपने कहा है कि सारे प्लेयर्स को जो है रेक्टेंगुलर एरिया में जाना पड़ता है कि जब फ्री कॉर्नर किक मिलती है,
तो दूसरी टीम के पास क्या रणनीति होनी चाहिए, मतलब जो अटैकर्स होते हैं तो उनके पास क्या रणनीति चाहिए जब वो किक आता है, कॉर्नर किक चाहे वो जब उनको मिलता है तो उनके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वो टारगेट क्या होना चाहिए उनका कि जहां पर मेरा खिलाड़ी, जैसे हम अभी कर्लर की बात कर रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो तो आला खिलाड़ी है दुनियाई फुटबॉल के, या लियोनेल मेसी, तो क्या टारगेट होना चाहिए उस कॉर्नर जो डालने वाला वो बंदा होता है उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए और किस तरीके से उनको फिर जो है उस किक को टर्न ओवर करना है गोल की तरफ। जी, ये सर जानते हैं एक दूसरे को, इनको पता है टीम में डिफरेंट प्लेयर होते हैं, कोई बॉल प्लेयर होता है, किसी के पास हेडवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, कोई शूटर होता है, ठीक है, कोई गोल के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है जो गोल कन्वर्ट करने में माहिर होता है। तो इससे टीम को पता होता है कि मैंने क्या स्ट्रेटजी है। अगर मेरी एलिजाना के साथ, एलिजाना और जो एजी ऑफिस का मैच है, इन्होंने पहले ही प्लान किया होगा शाहनवाज को कैसे बंद करना है, कौन सा स्ट्राइकर है, इसके पास क्या चीज़ है, जब कॉर्नर होगी हेडवर्क में क्या करना है, हेडवर्क कौन इनको जिसका हेडवर्क स्ट्रॉन्ग है उस टाइम क्या, उस सिचुएशन में क्या करना है। इसको ये पता नहीं है किस सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाना पड़ता है कि जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन के हिसाब से अब सेकंड उनमें इनको ये लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि मैंने करना क्या है। यहाँ पर बिल्कुल एक जबरदस्त यहाँ पर चांस था एलिजाना को, लेकिन वो क्रॉस बार्स के ऊपर से बॉल चली गई है। ये एक बहुत हम कहेंगे ये इजी सा चांस, ये आप देख सकते हैं रिप्लेस में कैसे पहले खिलाड़ी को छकाया वहां पर, 9 नंबर के खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रॉस बार्स के ऊपर से जो है दर्शक दीर्घा में वो बॉल चली गई। तो यहाँ पर एक बिल्कुल जो चांस बन सकता था एलिजाना के लिए वो चांस यहाँ पर गवाते हुए। शौकत साहब इस बारे में क्या ख्याल है आप? बिल्कुल इनके पास अनुभव नहीं था, इनको थोड़ा सा इन स्टप से ज़्यादा जोर लगा है इस पे। अगर ये इन स्टप राइट साइड से कर सकता है, ये राइट साइड को खाली पूरा एंगल खाली था, ये कन्वर्ट कर सकता है। यही फिनिशर की प्रॉब्लम यही होती है, एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर वहाँ पे ये चांस मिस नहीं कर सकता। बिल्कुल एक फिनिशिंग टच लास्ट में जो देना था वो यहाँ पर नाकामयाब होते हैं। फिलहाल इस वक्त एजीएस 11 के खिलाड़ी आगे बॉल को करते हुए, 9 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर कुछ छकाते हुए बहुत ही जबरदस्त वहाँ पर मूविंग उन्होंने दिखाई आगे करते हुए नंबर 8 के खिलाड़ी को, लेकिन कंट्रोल नहीं था उसमें, पेस ज्यादा थी बॉल में। और इस तरह गोलकीपर आगे आते हुए वहां पर एलिजाना के उन्होंने उसको पकड़ा और आगे करते हुए लॉन्ग किक और वहां पर हेडर का इस्तेमाल किया वहां पर एलिजाना के, बल्कि एजीएस ऑफिस के खिलाड़ी ने। इस वक्त सेंटर में इस वक्त बॉल है, बॉल को आगे करते हुए यहाँ पर नंबर 14 के खिलाड़ी इस वक्त क्रॉस पास करते हुए दूसरे खिलाड़ी की ओर और वहां पर फिर से कब्जा लिया था एजीएस ऑफिस 11 के खिलाड़ी ने। बहुत ही शानदार मुकाबला इस वक्त, लेकिन इस वक्त जो टीम आगे है वो है एजीएस 11 की टीम। उन्होंने एक गोल वो दागने में कामयाब हुए अगेंस्ट एलिजाना एफसी। दिस इज खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग। दिस इज इन फैक्ट द सेकंड हाफ ऑफ द मैच नंबर 24 which is live from the synthetic turf ground here at DRC Srinagar, and it is a very this is the assistant referee, he is just standing out of the lines there, and number 10 will deliver a corner kick here. It is, will this be a chance for, will this kick that turns the tables for the Elijana FC? So here he comes in charge, he just kicks it, it's a very flat kick, and once again which we were talking about with Shaukat Masoodi Saab, and same way the header comes out and he throws it towards the sideline. So that means the throw in here goes in favor of the Elijana FC, and they are going to deliver the throw in. Here goes Shafiqa. Absolutely, it's throw in. Ball comes in the field now. Once more, it's going to be a straight cracker, but well not. And from the target, ball is just posing straight away to the bylines. It's gonna to be a free kick. In fact, a goal kick that goes straight away in favor of AG's 11. And AG's 11 have already taken a lead of 1-0 in second half of the match. Yeah, there we go. Who is going to win at the end? And we'll be asking some questions to Shaukat Masoodi Saab, one of the great man from Shahri Khas, and ball has been placed well on the edges of the 6-yard dimensions there. He comes the goalkeeper, he's going to deliver himself, comes and executes it beautifully. It's up in the air, just passing the midline. In fact, it was obstructed before it touches the line there. Ball is up in the air for a while. They're asking the match official something there. Whistle has been blown, something goes in the way. Those players were asking for something, and maybe foul has been committed there.
Not a foul, maybe a handball kick. It goes in favor of Aegis 11. Aegis 11 defender comes in. He tackles it, sends straight away to his right out. He was well obstructed midway by the defender of the opponent's team from the Ali Janas Football Club is one of the player. The right out comes in charge. Can he make a good something out of it? But at the end, it was nothing as good as he could have been there. Goalkeeper, without wasting any much time there, sent straight away ball to the sidelines. One of the player with jersey number 9 takes it over. He was well blocked away by one of the player. Comes from the Ali Janas Football Club. He just chips it away. Half volley straight away to the defender, just making it mockery out of it, and it's up in the air for a while. Ball is beyond the lines once more. It's going to be a maybe a corner kick, or yeah, it's straight away a corner kick in favor of Ali Jana Football Club. If Ali Jana want to win this match, or if they want to neutralize, get an equalizer here, they need to hit all the decks here. Meanwhile, it is the goalkeeper who is ready there, and this is the corner kick. Up she goes into the penalty box area. He was some sort of simulation, beautifully clears that danger. Danger has been tackled away by Aegis 11 office. Meanwhile, ball has been taken forward. Number 8 comes in charge. Can we have one more from Aegis? Super passing. Anticipation was missing there. Had any player been there on the right direction, maybe this could have been the second one on the board. And whistle has been blown. Up it goes in favor of the Ali Jana Football Club now. Yes, absolutely. So here the kick goes here in favor of the Ali Jana Football Club, and it is one of the players from foreign. He just delivers it and he beautifully kicks it, and there was a player who just very fantastic work. Will there be a chance? No, it has been halted and it has been taken away there, and whistle has been blown there. In fact, not. And he's just trying to go forward. Number 10, it's Hanan, who has already hit one of the goal, and foul has been committed there, and whistle has been blown now. So this means the free kick goes here in favor of the Aegis 11. He's just trying to go forward. Oh dear, there was a chance for Amanjot, but it is just goalkeeper comes out and he collects it and passes it to his defender, who is just trying to go forward. It's a left out defender who is just trying to go forward. He just passes to his other comrade there, and who is just gone forward. He just passes it, but it is just work from one of the Aegis player, and couldn't hold on to it. Once again, it has gone out of the touchline. So throw-in comes here in favor of the Ali Jana Football Club player, and number 14 is going to deliver. He throws it in to the number 4. Number 4 just beautifully. It was just a curler. We were talking about a curler, and once again the ball has been taken away from, and it has been snatched from the team of Ali Jana, and it is right now in Ali Jana's favor. And number 9 is just trying to go forward. He's just trying to find out some player there, and he's going himself. Oh, what a move he has shown. There was no one there, and it could have been the chance of a goal, but he was in search of a player to be at a right place, but that hasn't happened to be, and it is once again in the position of. Till then we will talk about we'll talk with Shaukat Masoodi साहब. मासूदी साहब, आप मुझे ये बताइए, मेरे दिमाग में और एक सवाल उठता है यहाँ पर कि अभी जो खिलाड़ी बच्चे, मैं कहूँगा कि जो आपकी एकेडमी में इस वक्त जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है, आप मुझे ये बताइए कि वो मैनेज कैसे करते हैं कि एजुकेशन साथ साथ में तो होनी चाहिए, क्योंकि 6 साल के बच्चे के लिए तो एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो टाइमिंग क्या रहती है ट्रेनिंग करने में उनकी, क्योंकि 400 बच्चे आप कह रहे हैं इस वक्त मेरी एकेडमी में इस वक्त जो है उन्होंने दाखिला लिया हुआ है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी पढ़ाई? और आपने कहा कि मैं उनको जो है सेक्शंस में मैंने उनको जो है प्रैक्टिस देनी है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं कि पढ़ाई साथ साथ में पढ़ाई और साथ साथ में फुटबॉल भी? सर बिल्कुल सर, हम अभी 4 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है, तो 4 बजे सारे बच्चे आते हैं जी। फिर हम उनको एज ग्रुप के हिसाब से रखते हैं जी सर। तो उसके बाद आज पेरेंट चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, खासकर तो हमारी गेम जो फुटबॉल है वो जाना, वो ये समझते हैं कि ये बच्चे हमारे जो है कोई अब स्पोर्ट्समैन बन। पहले तो इतना ये रुझान नहीं था। आज आप इंशाल्लाह कभी आओगे उधर ईदगाह में, फिर देखोगे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट होते हैं, वो साथ होते हैं, वो वेट करते होंगे जब तक उनका सेशन ख़त्म नहीं होता है, तब तक वो नहीं जाते हैं। उनको उसमें फ्रूट होता है,
पानी होता है बैग दैट में। मींस कि जो रिफ्रेशमेंट उनको दिया जाता है वो दिया जाता है एकेडमी की तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से। हमारी तरफ से, नहीं, आपकी तरफ से अब नहीं। हमारी वो तरफ से साथ नहीं। होता है वो उनके? साथ होता है, उनके पेरेंट्स साथ होते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, आज पेरेंट इंटरेस्टेड है, आज माँ बाप इंटरेस्टेड है कि वो खिलाना चाहते हैं बच्चों को, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे प्लेयर बने, स्पोर्ट्समैन बने, वो बच्चों को साथ देते। पहले तो ये चीज़ नहीं था, पहले हमारे टाइम में बहुत मुश्किल से निकलना पड़ता हमें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं थी कि ये बच्चे स्पोर्ट्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज के माँ बाप जो है उनको फैमिली को नॉलेज है। आज मेरा बच्चा तो एक तो हेल्थ अपना मेंटेन कर सकता है, दूसरा ये इसमें अपना फ्यूचर भी बना सकता है। लेकिन वही हम पहले उधर ही पहुँचेंगे फिर उसी बात पे कि हम आपके चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए, इस गेम के लिए, ये स्टेमिना बेसिस गेम है, इसके लिए बच्चे को कोई फ्यूचर होना चाहिए, इसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो हम दिखाएंगे, फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल का जम्मू कश्मीर में पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को भी उसके लिए थोड़ा सा काम करना है, प्लेयरों के लिए देखना है। तो सर बिल्कुल आपसे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर फाउल किक जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर फॉरेन के जो खिलाड़ी हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ धक्कम धक्का इस वक्त चल रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, ये अच्छा नहीं है, विद इन द लॉज ऑफ द गेम भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर रेफरी थोड़ा सा उनको दूर ले जाते हुए यहाँ पर किक मारते हुए, लेकिन किक जो है यहाँ पर डिक्लेयर अभी नहीं कर दी गई है। रेफरी कुछ वहाँ पर इशारा करते हुए खिलाड़ियों को आप दूर दूर रहें। और यहाँ पर 11 नंबर के खिलाड़ी बाबा जो है बात करते हुए यहाँ पर रेफरी से, लेकिन रेफरी ने ये जो है फ्री किक डिक्लेयर कर दिया, फाउल किक बल्कि डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त बैठे हैं शौकत मासूदी साहब, उनसे हमारी बातचीत बिल्कुल जारी रहेगी मैच के इख्तिताम तक। और यहाँ पर आगे करते हुए बॉल को, लेकिन उस ओर गोलकीपर बाहर आए, उन्होंने उसको लपका और कोई चांस नहीं फिलहाल यहाँ पर फिर से AGS 11 की टीम को। यहाँ पर हेडर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर इस वक्त सेंट्रल लाइन के बीच में नज़दीक में इस वक्त बॉल है, आगे करते हुए उसको, और दूसरे इस वक्त पासिंग जो है इस वक्त फ़िलहाल चल रही है यहाँ पर अली जाना FC के खिलाड़ियों द्वारा। और देखना चाहेंगे कि क्या अली जाना FC की जो टीम है वो वापसी करने में कामयाब होती है, या वो 1-0 से ये मैच हार सकते हैं, या यहाँ पर बराबरी करना चाहेंगे, बल्कि क्योंकि उनमें भी वो दम है। और वो आगे करते हुए यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही ख़राब यहाँ पर किक मारता हुआ, और वो दर्शक दीर्घा में चली गई। तो इस तरह से शौकत मासूदी साहब, मेरा और एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आपने एकेडमी खोलने का सोचा था तो इनिशियली में आपने किसने आपको सपोर्ट किया है उस बारे में, क्योंकि ये आसान बात नहीं होती है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हम कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आसान काम नहीं है कि एकेडमी खोलना। तो इनिशियली में सर आपको सपोर्ट किसका रहा है, और ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं एक एकेडमी, क्यों ना मैं एक एकेडमी खोलूँ, उसमें बच्चे आएंगे, वो एक स्टार बनेंगे कल के। और आपने बहुत सारे तो बिल्कुल फॉरेस्ट को भी रिप्रेजेंट किया है, खुद भी खेला है, और फिर खुद उनके कोच भी बने हैं। तो आपको ये एकेडमी खोलने का आइडिया कैसे आया, और फिर आपको इनिशियली में किसका सपोर्ट रहा है सर इसमें? मैं सर फॉरेस्ट में ही खेल रहा था। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है ज़मीर अहमद ठाकुर, जो जम्मू कश्मीर JKFA के प्रेसिडेंट भी है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फ़याज़ अहमद सोफ़ी साहब है, तो ये मुझे काफ़ी क्लोज जानते थे, क्योंकि मैं फॉरेस्ट की तरफ से खेल रहा था। फॉरेस्ट के जो एक ऑफिसर थे, वो ऑफिसर भी थे फॉरेस्ट में, वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। फिर उन्होंने देखा ये काम कर सकता है, तो फिर जब मेरा भी एंड आने लगा, फिर मुझे ये फ़याज़ साहब, ज़मीर साहब ने बोला कि आप एक एकेडमी स्टार्ट करो। तो फिर उन्होंने मुझे बैक भी किया, उसके लिए मैंने पहले बोला। फ़याज़ साहब का भी काफ़ी रोल रहा एकेडमी, बिल्कुल एकेडमी खोलने में। वो फ़याज़ साहब ही शूज़ देते थे बच्चों के लिए, मतलब 50-100 शूज़ देते थे, बॉलें देते थे, सब कुछ प्रोवाइड करते थे मुझे उस टाइम, जब तक मैं खड़ा हो गया। तो फिर खड़ा होने के बाद मैंने एक सिविल सोसाइटी तैयार की वहाँ। आज 15 से 20 लोग हमारे पास हैं, जो मंथली हम कंट्रीब्यूट करने के बाद, तो बच्चों को जो ट्रैक सूट, जो शूज़, वाकई जो कभी कभी पिकनिक उनको लेते, तो वो चीज़ें हम करते। टूर्नामेंट हम हर साल, मैं इंशाल्लाह आपको भी बुलाऊंगा,
हम हर साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल करते हैं। अभी हम कुछ टाइम के बाद दरअसल वो कुछ कोविड की वजह से भी वो हम नहीं कर पाए, तो हम एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी करना चाहते हैं वहाँ पे। हमने सारा तैयारी की उसी के लिए, सब तैयारी हुई है उसके लिए। तो हम उस टाइम बच्चों को साइकिलिंग करवाते हैं, एथलेटिक्स जो दौड़ना जानते हैं उनको वो 50 मीटर बच्चों के लिए, 50 मीटर, 100 मीटर और फुटबॉल का भी छोटा एक 7-8 साइड मैच करवाते हैं उनको। तो उस टाइम वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम करते हैं। बिल्कुल, अगर उतने छोटे बच्चे 7-8 साइड के ग्राउंड में खेलेंगे तो बिल्कुल वो बड़े सितारे बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर चांस पहले आया था यहाँ पर, लेकिन उस बार भी वो चांस खोते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर बॉल को किक किया गया है। सेंट्रल में इस वक्त बॉल है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल फिर से बाहर चली गई है। तो थ्रो इन यहाँ पर मिलता हुआ, और देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो झंडी थी असिस्टेंट रेफरी की वो ऊंची होती हुई। तो यहाँ पर फिर से वहाँ पर कुछ खिलाड़ी जो है अलीजाना के, जो फॉरेन के खिलाड़ी है, वो कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे हैं रेफरी से, वहाँ पर कुछ अभी भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट ये जो है किक डिक्लेयर कर दिया गया है यहाँ पर, फाउल किक, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरिया के बीच सामने बिल्कुल रखी गई है बॉल। वो देखना चाहेंगे यहाँ पर दूसरा गोल करने में कामयाब होती है AGS 11 की टीम, या ये कोशिश जो है उनकी नाकामयाब कर देंगे यहाँ पर अलीजाना FC के खिलाड़ी। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा है ये, अभी ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-0 से आगे चल रहे हैं इस वक्त AGS 11 की टीम। यहाँ पर 10 नंबर के खिलाड़ी जो है इस वक्त गॉड लेते हुए उन्होंने किक मारा यार, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से वो किक आया था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है डिफ्लेक्ट कर दिया गया बल्कि। लेकिन 8 नंबर के खिलाड़ी ने फिर से उस पर कब्जा जमाते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना चाहेंगे कि पॉज किस तरह से देते हैं, लेकिन वहां पर उस और खिलाड़ी जो है उस पर जपट नहीं पड़े, तो इस तरह से फिर से साइड लाइन से बाहर गई। इस तरह से जो है अब अलीजाना FC के खिलाड़ियों के द्वारा अब ये थ्रो इन आएगा, थ्रो इन किया अभी, और इस तरह इस वक्त जो है सेंसिटिव पॉट जो है उसमें इस वक्त बॉल है आगे करते हुए नंबर 4 के खिलाड़ी को। नंबर 4 के खिलाड़ी इस वक्त ढूंढ रहे हैं कहाँ पर खिलाड़ी है, उसी ओर पहुँचा दी है। और अब देखना चाहेंगे कितना फॉरवर्ड वो ले सकते हैं या वो कब्जा वहाँ पर खोते हैं, लेकिन आगे करते हुए यहाँ पर, लेकिन विसल वहाँ पर बजती हुई, और इस तरह से जो है ये गोल किक मिला है यहाँ पर AGS 11 की टीम को। सर हमारे साथ मेरे को कमेंटरेटर वो कुछ सवालात मतलब कर पूछना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हम बहुत सवालात पूछे हैं, और एकेडमी जो है बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पॉन्सर्स है, स्पॉन्सर्स काफ़ी अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप किसी एकेडमी को चलाते हैं, अपने मतलब योर पॉकेट्स आर रनिंग आउट, तो आपको लग रहा है कि स्पॉन्सर्स में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली? बिल्कुल सर, हम आपकी वसादत से तमाम जो कॉरपोरेट सेक्टर है, बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आएँ, वो देखें अगर ये यूथ आज दूसरे साइड से जा रहा है, कोई ड्रग ऐसे कुछ खराबियां जो हमारी सोसाइटी में आ गई, तो उनसे दूर रखने के लिए तमाम बिजनेसमैनों को मैं आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो आगे आए, चाहे हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो देखे मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, जितना भी हो सके, जितना भी अच्छे अल्लाह ताला ने बड़े लोग यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए वो आगे आए, हर एक गेम के लिए वो सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ है ये बच जाए। कुल मिला के कितने खिलाड़ी है एकेडमी में अभी? किससे हमारे पास 400 बच्चे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रोल कम हो गया क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ा सा कमी हो गई है, क्योंकि कुछ बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं या उनके कुछ 10-20 दिन के बाद एग्ज़ाम भी है। सारे लोगों की जो आप जो मतलब उनको सर्व करते हो या उनको सिखाते हो वो शहर खास में हो रहा है? शहर ईदगाह में हो रहा है, सारा काम ईदगाह में हो रहा है। हमारे कम से कम जब आप आओगे 20 से 22 लड़कों का स्टॉप है हमारा। आपकी कोई वहाँ पर जो है एसोसिएशन है डाउनटाउन साइड से या शहर खास के साइड से आपकी है कोई एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन जैसी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी है जिसके सदर फयाज साहब, उसी तरह लोकल लेवल्स पे होती है डाउनटाउन एसोसिएशन है? नहीं डाउनटाउन, क्योंकि जैसे डाउनटाउन FC है, डाउनटाउन हीरोज खेल रहे हैं,
जेके फुटबॉल एकेडमी। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है फयाज अहमद सूफी साहब है, वो ये एसोसिएशन है, हम फुटबॉल एसोसिएशन को ही फॉलो बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर घर में एक बच्चा संभला नहीं जाता और मसूदी साहब जो है 400 बच्चों को संभालते हैं। सर सैल्यूट है आपको, और आपकी जो एकेडमी है वो आगे चले और आपको जो सपोर्ट है बिल्कुल वो सपोर्ट आपको दिया जाए। तो आपका यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे कॉम्बॉक्स में आने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो यहाँ पर अभी खेल चलता हुआ यहाँ पर अलीजाना एफसी और जो है AGS 11 की टीम, AGS 11 की टीम जो है अभी जो है लीड करती हुई 1-0 से। तो ये मैच नंबर 24 इस वक्त चलता हुआ, बहुत ही शानदार मैच है ये जारी यहाँ पर सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड TRC श्रीनगर से। शौकत मसूदी साहब पिक्चर में वाकई में हमसे जवान नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल ये जो है उम्र जो है लंबी कर दी और उनको सेहत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने में बहुत मज़ा आया, वाकई में काबिल तारीफ़ और एक सराहने वाली काम कर रही है। तो शायकीन को बताना चाहेंगे आज के हमारे जो मेहमान है खुसूसी थी कॉम बॉक्स में, उनका नाम था शौकत मसूदी साहब, जो कि शहरी खास से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी बड़ा योगदान वो स्पोर्ट्स की तरफ दे रहे हैं। सभी को बताना चाहेंगे कि आप भी किसी न किसी तरीके से इरशाद भाई जो है स्पोर्ट्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती हो, और अगर आपके पास काफ़ी पैसा है, अल्लाह ताला ने आपको पैसों से नवाजा है, आप किसी टीम को स्पॉन्सर भी कर सकते हो। जैसे उनकी टीम है, उनकी टीम को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं शहरी खास से लेकर पूरी जो ये हमारा सिटी है, श्रीनगर सिटी जो है हमारी श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट जो है राजधानी है पूरे जम्मू कश्मीर टेरिटरी की, समर कैपिटल। हम ये कहेंगे कि करना से लेके काजीगुंड तक जो है जो भी अगर कोई बड़ा है कॉरपोरेट चला रहा है, चाहे वो प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, या किसी को अल्लाह ताला ने ऐसे नवाजा है बहुत सारे पैसों से, तो बिल्कुल वो आगे आए इस ब्यूटीफुल गेम को सपोर्ट करे। वो जो यूथ है हमारा वो इस वक्त ड्रग्स ले रहा है, चर्च की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो नासूर बना हुआ है सोसाइटी में, उनको उनसे टाले, उनको दूर बचाए, उनसे उनको दूर रखें उनसे, तो वो आगे आ सकते हैं और उसकी तरफ रागिब कर सकते हैं। हम सिंपली ये कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में एज अ प्लेयर कुछ रोल अदा करोगे, एज ए कुछ डिफरेंट भी आप अदा रोल कर सकते हो, जैसे कि एज स्पॉन्सर, जैसे हम करते हैं एज कमेंटेटर, कोई करता है एज रेफर, कोई करता है एज अंपायर। तो किसी ने जो भी कोई ऐसा होता है, कोई इंसान जो कि नेव होता है, जिसके पास कुछ खास टैलेंट नहीं होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उसको पैसा दिया, अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया है, इज़ फाइनेंशियली वेरी साउंड, आई बिलीव दैट ही कैन कंट्रीब्यूट मच मोर बेटर देन अ प्लेयर टू एनी सोसाइटी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, absolutely, bro. It is very, very important. And meanwhile, here one of the player is not feeling well. Oh, from AGS 11, it's number 9, and he is not feeling well. It is Ifham, and he is feeling shooting pain. Look at that. This is the spirit of the game. He one of the player from opponent side. Yes, opponent side is showing the spirits. Player has been brought down, and it was the player from the opponent side, that is Alijana side. He come into the rescue there. And right now the ball is in possession of Alijana, but it has been taken away by the player from the AGS 11. He just forwards it to his other player there. He's trying to find out someone. Yes, he does. And what an absolutely, it has been saved from one of the AGS 11 player, otherwise it could have gone outside. So now she goes, and that means here the throw in. In fact, the goal kick comes here in favor of the Alijana FC. Alijana are yet to get off the mark. It is 1-0 on the board, and 1 is for the AGS, and Alijana is yet to get off the mark. So ball has been placed at the right spot. The defender comes out, he kicks it very high, and it just came down, and the headshot came out from one of the players from AGS 11. He's just trying to go forward. He is just moving with the face. Will there be a chance? Oh yeah, oh my dear, that was an absolutely chance, but it has been halted. It could have been an easiest of the chances, and once again the goalkeeper from the opponents just came out of that goal post, and this shouldn't have been, because already we have seen in before this game the goalkeeper came out very, very forward, and it was a goal for the team of JK Police. And here it is the number 8 from Alijana FC. He is just giving some moves, and he just forwards it to his central defender, and who just trying to go forward.
and it's a very fantastic contest going on between these two teams, and Alijana AGS 11 is marginally ahead of Alijana FC with 1-0. So we have to wait and watch. Will Alijana come back in this game, or it will be a victory for AGS 11 with 1-0? Yeah, there we go. It's a difference of 1 goal here. AGs have taken a lead of 1-0 against the Alijana Football Club. Phonetically, looks like to be a same names there with some sounds, similar sounds, and it created some sort of mental pressure here in the com box. Meanwhile, one of the player from the Alijana Football comes in charge. Some beautiful faces, and above 60, above 70, above 50, above 40 Maulanas. I mean, it's composition of different people and different gestures with some wonderful faces, beautiful faces, and he looks old, but his spirit looks quite young, and even more younger than a person who has not been indulged in sports activities. There we go, it's up in the air, just in front of the penalty box area. Header comes in charge, sends it, chips it over. One more player comes, makes some sort of a half volley. He gets ball, number 18 sends it to the sideline players. He comes in charge once more, takes the ball forward, stepping ahead with just number 9. Simulation comes in and dives beautifully straight towards the touchline. Going to be a throw in, and thrown in favor of AGs 11. AGs 11 have done a smart work, just getting one opportunity and converting that one without wasting much of time there. And there we go. It's one more pass straight away to the AGs 11, number 8. Number 8 has having a deck over the players there, makes a good look out of it. Can he makes a good pass, created some sort of a chance, but that was not well on the target there. It's up in the air, just trapped beautifully, not well enough on the right proper direction there, as the ball goes straight to the opponent's player. He comes in with jersey number 9 from the Alijana Football Club, was just chipping it over. Header comes from the opponent sides. One more, and ball goes straight to the one more player from the jersey number 9 from the AGs 11. He takes it out, steps, crosses it beautifully, just landing around the edges of the penalty box there. That has been well blocked by jersey number 4 from the team of Alijana Football Club. A foreigner takes the ball beautifully and just marginally in front of the midline, is over the touchline once more for a throw in. Throw comes straight away in favor of AGs 11. There is 97 goes out and number 20 comes in. And so let's wait and watch. The throw in here goes in favor of the AGs 11. And some dignitaries are watching the match from the gallery there. This is match number 24, Alijana FC. Alijana is leading. In fact, they are just lagging behind with 1 goal against this AGs 11. So here the throw comes in, and it was well taken by one of the players from AGS 11 with his, and he's just trying to get it forward, and there was a certain chance, but oh dear, this is that he just fell upon into it, and it has been the foul kick has been declared. And here comes the player from the Alijana. He just kicks it forward. In fact, the foreign player just trying to put it forward to his other foreigner, and once again the ball has been taken and in fact snatched by the players from the AGS 11. What a team he has been. I have been a fan of AGS 11 because this team is not that much in form as the other teams here in Srinagar, and this is absolutely fantastic. So we welcome in our com box Mr. Fayaz Ahmed Sofi Saab, DFA President, and we welcome to you, sir, in our com box. And here goes Mr. Fayaz Ahmed Sofi Saab. थैंक यू। मैं दोनों कमेंटेटरों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने तो नक्शा ही बदल दिया यहाँ के, जो अभी तक ख्वाब था तो पूरा हो गया। तो आप लोगों की बहुत अच्छी मेहनत है इसमें, और मैं ख़ासकर फ्रिस फिल्म वालों का, NN वालों का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया हमारे बच्चों को। आज देखिए हर एक अपने मोबाइल पर मैच देख रहा है, घर में TV पे देख रहा है, और आप लोगों की कमेंट्री सुनकर हमें लग रहा है, कभी कभी मुझे लग रहा था कि हम इंग्लैंड में कहीं ना बैठे हैं। तो मामा शफी परा साहब और आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के इन्हीं काविशों वजह से अगर फ़ुटबॉल को और कोई मुकाम मिलने वाला है तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह और भी मौके मिलेंगे, क्योंकि ये इब्तिदा है। हमें भूलना नहीं चाहिए ये जावेद साहब का जिहाद, ये इन्होंने बात जब हमारे सिद्ध का, मुझे नहीं लग रहा था, मैं शायद समझ रहा था कोई शायद
ऐसे कोई चैनल वाला, ये मोबाइल चैनल वाला आया होगा, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था। लेकिन आज तो जो हमें लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ अचीवमेंट की है, वाकई में तहलका मचा दी। तहलका मचा दिया। ये बात ये नहीं है कि आप देखिए कहाँ से कहाँ देख लेंगे कि लोग, आप हम जिस एरियाज़ में जाएंगे, जैसे हम कुपवारा में जाएंगे वहाँ भी देख सकते हैं, हमारे कुलगाम साइड से देख सकते हैं, शुपियान जम्मू में बच्चे हमारे देख रहे हैं इस वक्त, तो वो बता रहे हैं कभी नहीं जी ये उस लड़के ने गोल किया, इस लड़के ने। और ये सबसे बड़ी बात है, अभी देखो आपकी मैं कमेंट्री सुन रहा था, मैं घर से आकर ना गाड़ी में देख रहा था, अभी आप पूछ रहे थे कि एजीज़ और इसके बारे में। देखिए आपको बताऊंगा, एजीज़ की टीम जो बहुत ही मजी हुई टीम है, ये नाम बहुत बड़ा है, इसके जो भी प्लेयर है वो सारे स्टार है। जेएनके के जो स्टार रहे हैं ना, वहाँ जो जाते हैं ना उनको, जिसके पास संतोष ट्रॉफी जिसने खेली होगी या नेशनल स्टार होते हैं, और इसमें जो भी प्लेयर है वो स्टार है। और अभी मेरे ख्याल में से जो भी प्लेयर इनमें से 10 साल से ऊपर खेला हुआ है, और तजुर्बा इनके पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो अलीगाना की टीम हमने, ये इसी साल हमने इसको ये दे दिया, प्रमोशन दे दी अपने प्रीमियर लीग में। फिर भी इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, पैसा बहुत खर्च किया, फॉरेनर प्लेयर्स को लाया, और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के बहुत ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं, हमारे हाजन एरियाज से खेल रहे हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयरों को एक नेशनल लेवल के प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो ये देख लीजिए फुटबॉल का कंपटीशन फख्र की बात है। आप देखिए कि ये छोटी सी बात नहीं है। कहाँ वो गांधरबल का लड़का सोच रहा था मैं तो गांधरबल में लीग खेलता हूँ, और आज वो प्रीमियर लीग खेल रहा है। वैसे फयाज साहब बात करेंगे, हर एक इंसान के लिए ख्वाब रहता है, क्योंकि मैं जब पहली बार यहाँ पर मैच देखने के लिए आया था, क्योंकि आपके साथ ताल्लुक का जो फुटबॉल की वजह से रहे, लेकिन मैं बीच बीच में आता था यहाँ मैच देखने के लिए। मुझे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही पसंद आई थी, तो शाम को हम मैच देखने के लिए आते थे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, ANN फ्रेश फिल्म की तरफ से मैच लाइव होगा और फयाज साहब हमें कॉल करेंगे यहाँ पर होस्ट करने के लिए। हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। बिल्कुल एजाज़ की बात है। बिल्कुल आपको पता नहीं, जब हम मिले थे ना पहली बार, तो मैंने आप दोनों से वादा किया था, क्योंकि आपकी जब मैंने लैंग्वेज देखी थी, वहाँ आपकी कमेंट्री सुनी थी, तो मैं सोच रहा था कभी हमें मौका मिले। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि हम आपको यहाँ टीवी प्रोग्राम में लाएंगे। तब मेरा जो इरादा था कि कभी हमारा फाइनल होता है, मैं आप दोनों को ला के ना यहाँ अपनी एक आपकी पहचान यहाँ लोगों से कराना चाहते। लेकिन अल्लाह ताला का देखिए शुक्र है कि उस अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी होती इंसान के लिए, और हम आप लोगों को यहाँ आज इस स्टेडियम में देख रहे हैं। ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। देखिए छोटी सी बात नहीं है, पता नहीं कितने बड़े बड़े कमेंटर्स हमने देखे हैं। मैंने ऑलरेडी मैं जब मैचेस में भी जाता हूँ, कभी दूरदर्शन में भी गया हूँ, जब यहाँ हमारे हाँ, लेकिन मौका कम मिलते हैं ऐसे। जब ये मैंने सुना कि ये प्रोग्राम, तब मैंने जावेद साहब और शबीर साहब को कहा कि जनाब मेरे पास, उसने कहा जी आप ही कुछ करो। तो मेरे जहन में फ़ौरन आप दोनों का नाम आ गया। तो मैंने पता नहीं, शायद आपको पता है कि मैंने टेलीफोन पे कर दिया था, मैं कि आप आइए। अब आपने फिर बताया कि मैं आज क्रिकेट का मैच कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर आपने वो क्लिप भेजी थी हमें, तो वो देख के तो मुझे पता ही था कि आप ये अरशद भाई बहुत ईमानदारी के साथ बात करें फयाज साहब, क्योंकि उस दिन मैं क्रू का मैच कर रहा था। हाँ बिल्कुल, फयाज साहब से मेरी बात हुई थी। तो माशाल्लाह फयाज साहब आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे, और बाकी में सपोर्ट्स को हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और इंसान के पास जो सलाहियत है उस सलाहियत को आगे ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म दिया है JKFA ने, और उसमें डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर जे बहुत ही तगड़ा काम कर रही है। नहीं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, हमें फ्रिस्क फिल्म और ANN का बड़ा शुक्रगुजार रहना चाहिए। देखिए हर एक आपको मिलेंगे यहाँ, इतनी चैनलें चल रही हैं, इतने ब्रॉडकास्ट हाउसेज है, लेकिन कभी किसी ने पहल नहीं की। आपको मैं अगर आपसे मैंने कहूँ ना, मैंने 25 साल पहले यहाँ की एक बड़े जर्नलिस्ट, अल्लाह ताला अब वो ज़िंदा नहीं है, तो बड़ा अखबार था उसका, तो हमारे चीफ गेस्ट आए थे, तो तब हमारे पोलो ग्राउंड में हमारा होता था ये मैचेस। उन दिनों तो चलनों का चलन नहीं था, उन दिनों अखबारों में जब किसी प्लेयर का फोटो, प्रिंट मीडिया का जब फोटो आता था ना, वो प्लेयर समझता था कि मैंने ओलंपिक खेला। तो बड़ी अखबार थे, तो मैंने उस एडिटर को कहा सर आप इतना काम कर रहे हैं, आप हमें इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ियों के लिख रहे हैं, आप हमें
इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयरों का लिख रहे हैं, लेकिन हमारे लोकल प्लेयरों का आपके अखबार में कहीं जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बार ये मसला उठाया था हर एक अखबार के एडिटर के साथ। तो लास्ट में वो मुझे कहने लगा, यार अगर है कोई बंदा मैं 5-6 हज़ार रुपये दे दूँ। तो मैंने बोला सर इससे बेहतर है थप्पड़ मारना, 5-6 हज़ार रुपये कौन काम करेगा। मैंने कहा अगर आप हज़ारों रुपए दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को दे रहे हैं तो ये क्या लग रहा है आपको, ये मुफ्त वाला काम। आप देखो जितना लोकल स्पोर्ट्स में मैंने कहा आपके 2-2 पेज भी भर सकते हैं, जितना काम यहाँ। तो बड़ी तमन्ना रही थी मुझे कि कम से कम लोकल फिर यहाँ आए, जैसे आबिद खान आया, उसके बाद रेजिंग कश्मीर में भी 2-3 अच्छे लड़के आए, तो उन्होंने शुरुआत की सही। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी वजह से जो एएनएन ने आज जो नया हमें ये जो रास्ता दिखाया, हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए फिर एएनएन का, और उसके साथ इनके स्पॉन्सर्स जैसे खैबर मिल्क है, ये अपना अराइज हुंडई है, शबराग है। देखिए कम से कम इन्होंने तो सपोर्ट किया ना, पहल की यहाँ। और यहाँ क्या मिल गया हमें, आज हमें एक टीम मिल गई आप दोनों की, J&K फुटबॉल एसोसिएशन, ये प्रोडक्शन हाउस की। तो ये टीम बन के आगे देख लीजिए, इंशाल्लाह हमारा जो काम होगा ना आगे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसा कभी सोचा था आपने कि एएनएन न्यूज़ पे ऐसा ये मतलब ये फेस्टिवल प्रोडक्शन इसको जो है आगे ले जाने की लाइव कोशिश होगी, तो आपने सोचा है कि वाकई में जो कामयाब हम हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इतने कैमरा से। मैंने कहा देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, मैं जितना मैंने बहुत ज़्यादा फुटबॉल देखा है, क्योंकि उसकी वजह मेरा दोस्त जहाँ था मुझे अब्दुल मजीद कपूर साहब, तो उसकी वो मेरा दोस्त था बचपन का। अब जब भी उसको इंडिया खेलने का मौका होता था मैं उस जाता था, और वहाँ मैं उसके साथ ही रहता था होटल में भी। वो मुझे एडजस्ट करते थे अपने होटल में रहने का, मुझे एडजस्ट करते थे। उसका दोस्त होता था बॉबी मुनी उसका नाम था, उनको पता था वो मेरे साथ लेते थे, अपने ही कमरे में बिठाते थे। और यही वजह है कि जब हमने मैंने जब टूर किया था उनके साथ कलकत्ता में, तब नेहरू गोल्ड कप पहला हुआ था, तो ये भी ईडन गार्डन में था मैच। तो इंदिरा गांधी उस दिनों प्राइम मिनिस्टर थी, और वो उसको ओपनिंग करने के लिए आई। तब मैंने पहले फ्लैश लाइट्स देखे थे वहाँ पे ना ईडन गार्डन में। तो मैं तब अपने देख रहा था, तो यहाँ तो हमारे अक्टूबर में ही मैच बंद हो जाते थे कि तो यहाँ तो घरों में बिजली नहीं होती थी। आपको पता था हमारा पूरा बचपन है वो तो अंधेरे में ही गुजारा है, क्योंकि सर्दियों में कभी लाइट होती नहीं थी। आप देखिए वहाँ देख के मैंने समझ रहा था क्या कभी हमारा कश्मीर भी ऐसा बन जाएगा। सच ये तो एक ख्वाब है। अब 1984 का वाक़ा मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन दिनों मैंने देखा वहाँ चैनल्स पर ना जो दूरदर्शन दिखा रहा था मैच, क्योंकि उन दिनों दूरदर्शन नहीं था, तो बाकी चैनल तो भी। उसके बाद मुझे और भी चांस आया, मैं कालीकट भी गया जब मजीद साहब कैप्टन बने थे इंडियन फुटबॉल टीम की। तो उस दिन मैं भी उसके साथ था। हम कमरे में बैठे थे, हमें पता नहीं था, हम ऐसे शाम को गपशप हो रहे थे, तो वहाँ से प्रेस वाले आए, तो उन्होंने कहा कि नीचे जी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ मजीद साहब आपको कैप्टन चुना गया। अचानक से एक फैसला आया, तो इतनी खुशी होती थी। और फिलहाल यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैच इख्तिताम को पहुँचा है। यहाँ पर जो AGS 11 की टीम ने उन्होंने यहाँ पर डिफीट देते हुए वो अली जाना FC की टीम को, तो इस तरह से 1-0 से उन्होंने यहाँ पर मैच जीता है। हम यहाँ से बात कर रहे हैं इस वक्त फयाज अहमद सोफी साहब से, जो कि DFA के प्रेसिडेंट है।